Hello friends. In our last video, I just discussed you the concept of the bit configuration of command words. So I just told you the meaning and the functioning of each bit of command word. That is basically control the 8251 programmable communication interface. Okay. So now we are just moving towards the next one, that is the bit configuration of mode instruction in asynchronous data communication mode. Okay, asynchronous serial data communication mode. So when we are just using asynchronous data transmission mode, the 8-bit representation is like this. Here D0 and D1 bit basically provide the information about baud rate. Okay, so baud rate factor. So when this B1 and B2 bit is equal to 0, 0, then this is your synchronous transmission. Okay, actually right now we are just talking about asynchronous. So when this B1 and B2 is equal to 0, 0, then this is your asynchronous. Sorry, that is your synchronous data transmission. तो एसिंक्रोनस में इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन जब हम सिंक्रोनस मोड की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो B1 और B2 की वैल्यू है ये फिक्स होती हैं, दैट विल बी 0, 0. ओके, when the value of d1 and d2 is 0 and 1, d1 and 0 is 0 and 1, then the baud rate factor will be 1 cross. Okay, that means कि जो baud rate assign किया है उसी baud rate में data transmission perform होगा. Next one is when b2 is equal to 1 and b1 is equal to 0, then baud factor is 16 cross. मतलब जो भी baud rate यहाँ पर provide किया गया था, अब वो 16 टाइम्स फास्टर यहाँ पर बेसिकली डेटा ट्रांसमिशन परफॉर्म होगा. When B1, B2 and B1 value is 1, 1, then 64 times faster basically data transmission perform होगा. So that is basically your baud rate factor. Okay, 1 cross, 16 cross and 64 cross. When it is 0, 0, then it is your synchronous data transmission is king. Okay, next two bits, that is D2 and D3, will provide the character length information. Okay, generally if we are talking about ASCII character, so ASCII character is of 7-bit or 8-bit. Okay, but with the help of these two bits L1 and L2, we can characterize the size of character length. Okay, so when it is 0, 0, then the character is of 5 bits. When it is 1, 0, then the character is of 6 bits. When it is 0, 1, then the character is of 7 bits. And when it is 1, 1, then the character length is of 8 bits. Okay, अच्छा यहाँ पर एक चीज हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जब हम लोग सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस की बात करते हैं तो इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो भी डेटा सेंड होता है वो डेटा बेसिकली क्या होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में सेंड होता है, ब्लॉक्स के फॉर्म में बेसिकली सेंड होता है. बट अगर हम बात करते हैं एसिंक्रोनस की, तो यहाँ पर 1 कैरेक्टर एट ए टाइम बेसिकली सेंड होता है. ओके, 1 कैरेक्टर एट ए टाइम का मतलब कि यहाँ पर उस कैरेक्टर में कैरेक्टर की लेंथ पहले फाइंड आउट की जाती है, जो भी लेंथ होती है. जैसे सपोज दैट अगर कैरेक्टर की लेंथ हम लोग 8 बिट की यूज कर रहे हैं, 1, 1 अगर यहाँ पर D2 और D3 की वैल्यू है, तो इसके साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पर एक स्टार्ट बिट का यूज करते हैं और 2 या 1 या 1.5 हम लोग स्टॉप बिट्स का यूज करते हैं. तो स्टार्ट बिट तो सिंगल होती है, स्टॉप बिट को भी हम लोग बेसिकली यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं. कहीं पर एक सिंगल स्टॉप बिट का यूज होता है, कहीं पर 2 स्टॉप बिट्स का होता है. ओके, तो ये बेसिकली हमें बताता है S1, D6 और D7 की वैल्यू. तो जब अगर D6 और D7 की वैल्यू हमारी 0, 0 है, तो 0, 0 वाले केस में क्या होगा, ये इनहिबिट कंडीशन पे रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि 0 इनहिबिट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये सिंक्रोनस मोड के लिए बेसिकली परफॉर्म होता है. ओके, अच्छा अगर वैल्यू 1, 0 है तो 1, 0 के केस में क्या होगा, यहाँ पर जो स्टॉप बिट है वो 1 बिट की होगी. इफ इट इज 0, 1, देन स्टॉप बिट साइज इज ऑफ then we have total 1.5 stop bits, and if it is 1, 1, then we have total 2 stop bits values. Okay, so these 2 bits value basically used to find out the length of stop bits. These 2 bits, that is D4 and D5, it basically used for parity purpose. So PEN stands for parity enable. Okay, and EP it basically holds for इवन पैरिटी. ओके, तो जब तक पैरिटी की कंडीशन को हमें इनेबल नहीं करेंगे तब तक हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि इवन पैरिटी है या आउट पैरिटी है. और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पैरिटी बिट होती है वो हमारी
ऑप्शनल बिट होती है। ओके, तो अगर हमने पैरिटी को इनेबल कर रखा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी। तो जहां पर 1 है वो हमारी वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, वहां पर हमारा पैरिटी इनेबल है। ओके, लेकिन अगर जहां पर 0 है तो इसका मतलब हमने पैरिटी को डिसेबल कर रखा है। तो ये जो इवन पैरिटी की वैल्यू 0 हो या 1 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में रिजल्ट क्या आएगा, डिसेबल ही आएगा, क्योंकि हमने पैरिटी इनेबल क्या कर रखा है, 0 0 कर रखा है। जब पैरिटी इनेबल को हमने 1 कर रखा है तब हम इस इवन पैरिटी की वैल्यू को चेक करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब हम इवन पैरिटी नहीं ऑड पैरिटी का यूज कर रहे हैं, और अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब हम लोग इवन पैरिटी का यूज कर रहे हैं। ओके, so these two bits are basically used for parity purpose. So that is basically the bit configuration of mode instruction in asynchronous data transmission. Now we are talking about this bit configuration of mode instruction in synchronous data transmission. So as I told you earlier that when d1 and d0 is equal to 0 0, then it is basically talking about synchronous data transmission scheme. Okay, so ये तो हमारी फिक्स हो गई यहाँ पर, जबकि वहां पर वैल्यूज जब हम लोग एसिंक्रोनस की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने इसको बॉड फैक्टर की तरह यूज किया था। D2 और D3 बिट्स की जो वैल्यू होती है वो हमारी कैरेक्टर की लेंथ को बताती है। सिमिलरली जैसे हमारा एसिंक्रोनस मोड में था, सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। उसी तरह जो D4 और D5 की बिट वैल्यू होती है वो भी हमें बताती है कि हम लोग किस टाइप की पैरिटी का यूज कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो सिमिलर टू एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन स्कीम जो अभी मैंने पहले डिस्कस किया था। नाउ द D6 बिट्स, D6 bits is basically used in synchronous mode कि जो सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है वो इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है या एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है। ओके, दैट इज बेसिकली यूज फॉर दिस D6 बिट्स। अगर इसकी वैल्यू 0 है देन दिस इज योर इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन, एंड इफ इट इज 1 देन इट इज योर एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन। ओके, इंटरनल और एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज दैट अगर मैं एक सेंडर हूं और मैं किसी के पास इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा हूं, सपोज दैट कोई एक रिसीवर भी हमारे पास अवेलेबल है, तो अगर सेंडर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज करने के लिए इन दोनों डिवाइस में से ही किसी ने क्लॉक पल्स को जनरेट किया है, मतलब सपोज जैसे अगर मैं सेंडर हूं तो मैंने ही क्लॉक पल्स को इनिशिएट किया है, मैंने अपने ऊपर भी वो क्लॉक पल्स लगाई है और वही क्लॉक पल्स मैंने रिसीवर को भी सेंड किया है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है वो इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है। और जब हम लोग एक्सटर्नल क्लॉक पल्स का यूज करते हैं दोनों डिवाइसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए, तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन होता है ये हमारा होता है एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन। ओके, दैट इज यूज्ड फॉर ESD। द नेक्स्ट वन इज D7 बिट्स इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिंक्रोनाइज कैरेक्टर। सो मैंने आप लोगों को बताया था जब भी सिंक्रोनस मोड का यूज होता है तो यहाँ पर सिंक्रोनाइज कैरेक्टर को सेंड करना होता है, क्योंकि जब सिंक्रोनाइज कैरेक्टर रिसीवर को रिसीव होता है तो उसके बिहाफ पर उसे आइडेंटिफाई होता है कि एक्चुअल डेटा हमारे पास एक्चुअली है क्या, क्योंकि सिंक्रोनाइज कैरेक्टर के बाद ही एक्चुअल डेटा रिसीव होता है। अब ये डिपेंड करता है कि हम लोग सिंगल सिंक्रोनाइज कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं या दो सिंक्रोनाइज कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं। ओके, तो उसके लिए हम लोग इस पर्टिकुलर D7 बिट्स का यूज करते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब दो सिंक्रोनाइज कैरेक्टर हमने यूज किए हैं। इफ इट इज 1 दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 1 सिंक्रोनाइज कैरेक्टर। ओके, सो दैट इज बेसिकली योर बिट कॉन्फ़िगरेशन मोड इंस्ट्रक्शन फॉर synchronous data transmission. Okay, now we have status word register also. So ये status word का काम क्या होता है कि जितने भी रजिस्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन रजिस्टर्स के स्टेटस को आइडेंटिफाई करने में के लिए, और माइक्रो प्रोसेसर को अगर कोई एरर आ रहा है, एरर के रिपोर्ट बतानी है माइक्रो प्रोसेसर को, तो उसके लिए बेसिकली ये जनरली यूज होता है। ओके, सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट बिट दैट इज TXRDY। अब ये मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था जब पिन डायग्राम बताया था, और जब ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसमीटर होता है उसके जो कंट्रोल लॉजिक होता है उसमें TXRDY पिन होती है। इसका मतलब होता है ट्रांसमीटर रेडी। ये तभी इनेबल होता है जब हम लोग ट्रांसमीटर को इनेबल करते हैं। अगर ट्रांसमीटर इनेबल है और TXRDY की वैल्यू अगर हमारी 1 है तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांसमिटेड बफर है वो रेडी कंडीशन पे है, मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर है वो माइक्रो प्रोसेसर अब उस पर्टिकुलर ट्रांसमिटेड बफर में डेटा को प्रोवाइड कर सकता है। ओके, RXRDY सिमिलरली जो रिसीवर के लिए जब हम लोग यूज करते हैं कि जो रिसीव बफर है वो यहाँ पर उसमें उस समय पर्टिकुलर डेटा अवेलेबल है सेंड करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को, तब RXRDY की वैल्यू हमारी 1 होती है। ओके, TXE का मतलब होता है ट्रांसमीटर एम्प्टी। जब मैंने आप लोगों को बताया था ट्रांसमीटर सेक्शन,
तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर दो रजिस्टर होते हैं, एक ट्रांसमिटेड बफर रजिस्टर होता है और एक ट्रांसमिटर आउटपुट रजिस्टर होता है। ये आउटपुट रजिस्टर ही बेसिकली हम शिफ्ट रजिस्टर की तरह इसका यूज करते हैं ताकि पैरेलल इंफॉर्मेशन को सीरियल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा सके। तो TX एम्पटी ये बेसिकली किसके स्टेटस को बताता है, जो आउटपुट रजिस्टर है उसके स्टेटस को बताता है। और TX RDY ये क्या करता है, ये बेसिकली ट्रांसमिटेड बफर रजिस्टर जो होता है उसके स्टेटस को बताता है, ओके, कि वो हमारा खाली है। TXE का मतलब क्या हुआ कि जो आउटपुट रजिस्टर है वो आउटपुट रजिस्टर अभी हमारा वैकेंट है, उसमें वो एम्पटी है, तो इसलिए हम लोग TXE का जनरली वहां पर यूज करते हैं। तो जब तक वो एम्पटी होगा तब तक डेटा हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस को नहीं सेंड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ TXD सिग्नल, ओके। Next one is okay, these three D3, D4 and D5 basically represents the error, okay. FE basically your frame error, OE मतलब overrun error, सॉरी दिस इज योर PE मतलब पैरिटी एरर, OE मतलब ओवररन एरर, FE मतलब फ्रेम एरर। अच्छा, अब ये देखो एरर होती क्या है। जैसे सपोज अगर हम बात करते हैं पैरिटी एरर की, तो पैरिटी एरर में सेंडर तो इवन पैरिटी का यूज कर रहा है बट रिसीवर को और पैरिटी की इंफॉर्मेशन मिल रही है, ओके, तो ये हमारी पैरिटी एरर हो गई। ओवररन एरर का मतलब क्या हुआ कि रिसीवर ने माइक्रोप्रोसेसर के पास कैरेक्टर सेंड किया और कैरेक्टर सेंड करने के बाद अब दूसरा कैरेक्टर भी दूसरे कैरेक्टर को भी रिसीवर ने सेंड किया, बट पहला कैरेक्टर अभी माइक्रोप्रोसेसर रीड ही नहीं कर पाया था, तुरंत दूसरा कैरेक्टर आ गया। तो ये बेसिकली क्या होता है, दैट इज योर ओवररन एरर, ओके। फ्रेम एरर में क्या होता है, फ्रेम एरर का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने फ्रेमिंग में बताया था कि अगर हम लोग एसिंक्रोनस मोड का यूज कर रहे हैं, सो वी आर जस्ट यूजिंग स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट, ओके, और अगर पैरिटी बिट की रिक्वायरमेंट है तो पैरिटी बिट भी यूज करते हैं। तो ये स्टॉप बिट हम लोग कितनी यूज कर रहे हैं, सिंगल स्टॉप बिट का यूज कर रहे हैं या 2 स्टॉप बिट्स का यूज कर रहे हैं, ये ऐसा होता है कि जैसे सेंडर ने जो ट्रांसमीटर है उसने 1 स्टॉप बिट का यूज किया लेकिन रिसीवर के पास 2 स्टॉप बिट्स की इंफॉर्मेशन जा रही है, तो ये बेसिकली एरर होती है, दैट इज बेसिकली योर फ्रेम एरर, ओके। तो इन 3 टाइप्स की एरर के स्टेटस को बताने के लिए हम लोग स्टेटस रजिस्टर का यूज करते हैं। अगर करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है तो वो एरर वहां पर अकर हो रही है और माइक्रोप्रोसेसर को उसे नोटिफाइड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज सिंडेट। बताया था मैंने कि सिंडेट बेसिकली सिंक्रोनाइज कैरेक्टर को डिटेक्ट करने में इसका यूज किया जाता है और ये सिंक्रोनस मोड में इसका यूज होता है। अगर हम लोग एसिंक्रोनस मोड की बात करते हैं तो वहां पर यहाँ पर ब्रेक कैरेक्टर का बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, ओके। सिंडेट ऑब्लिक BD, ओके, ब्रेक डिटेक्शन का यहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट वन इज डेटा DSR। DSR इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर डेटा सेट रेडी। मैंने मॉडम कंट्रोल में बताया था, तो ये बेसिकली उसमें एज एन इनपुट सिग्नल की तरह यूज हो रहा था। इनपुट सिग्नल की तरह यूज हो रहा था मतलब कि यहाँ पर मॉडम जो है वो मॉडम यहाँ पर मॉडम की को बेसिकली चेक किया जाता है कि वहां पर वो डेटा सेट रेडी है या नहीं है, ओके। So it is basically used for testing the modem conditions such as data set is ready or not, okay. So that is basically the use of 8251 status word. So that is basically the command of that is basically the format of 8251 command register, okay, as well as mode register and status register. Now we are just moving towards the third component of 8251, that is your modem control signals. So in modem control signals we have basically 4 inputs. The first one is the data set ready, okay. This basically input signal अभी जैसे मैंने मोड में बताया था कि इस input signal का हम लोग यूज करते हैं इस इनपुट सिग्नल का हम लोग यूज करते हैं टू टेस्ट मॉडर्न कंडीशन सच एज डेटा सेट इज रेडी और नॉट, ओके। DTR कॉम्प्लीमेंट ये हमारा आउटपुट सिग्नल होता है, मतलब यहाँ पर 8251 बेसिकली सिग्नल का यूज करके और मॉडर्न को इन्फॉर्म करता है कि जो डेटा टर्मिनल डिवाइस है दैट इज बेसिकली रेडी। डेटा टर्मिनल डिवाइस का मतलब होता है डेटा ट्रांसमीटर, जो ट्रांसमीटर है वो अभी रेडी कंडीशन पे है। तो जब उसके बाद क्या होता है कि RTS कॉम्प्लीमेंट भी हमारा ये भी हमारा क्या होता है, ये देखो ये भी हमारा आउटपुट सिग्नल होता है RTS कॉम्प्लीमेंट। सो RTS कॉम्प्लीमेंट इज योर आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल का मतलब क्या हो रहा है कि दैट सिग्नल इज प्रोवाइडेड बाय 8251 टू मॉडम, ओके। इनपुट सिग्नल का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर मॉडम के थ्रू 8251 के पास सिग्नल सेंड किया जा रहा है, ओके। CTS कॉम्प्लीमेंट मीन मॉडम बेसिकली सेंड द सिग्नल टू 8251। अगर ये आउटपुट सिग्नल है तो इसका मतलब 8251 सेंड द सिग्नल्स टू मॉडम, ओके। तो
अगर हम बात करते हैं DTR कॉम्प्लीमेंट की, सो दिस आउटपुट सिग्नल इज यूज्ड टू टेल मॉडेम दैट डेटा टर्मिनल इज रेडी। ओके, और कौन सेंड करता है? 8251 सेंड करता है। बाकी नेक्स्ट सेक्शन